Hi guys, good morning. So welcome back to this around third lecture or I guess fourth lecture of electrostatics, and today we'll only be discussing about the questions which we have till now studied on electrostatics. Of course there was one more topic which I saw when I went back to my house, as in there was a topic of the relative permittivity which was being left out. तो वो भी आज हम कर लेंगे. It's a one line topic, so you don't need to worry about that. Today we will be solving around 2 or 3 questions, and these 3 questions are very important to make you understand that how actually electrostatic works. Let's understand this. The first question says, so I've just written only 2 questions because I needed some space on the board. After this we are of course going to solve one more question, and then we are going to wrap up the topic before discussing relative permittivity, and then we are going to complete the topic up. And of course a numerical sheet is coming your way, guys. Now, a small sphere is given a charge of 20 microcoulomb. A small sphere is given a charge of 20 microcoulomb. So let's take the question number 1 something like this. एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का. ये जो U का साइन बना है, मेरी राइटिंग है, पार्डन मी. म्यू का साइन मतलब 10 to the power -6 होता है. ओके, सो somebody says what is mu, so let's write mu should be equals to 10 to the power -6 coulombs. ओके, मतलब ये 10 to the power -6 होता है. coulombs इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर coulomb लिखा हुआ है. Charge of 20 microcoulombs and a second sphere of equal diameter is given a charge of -5 microcoulombs. The two spheres are touched and then separated 10 centimeter apart. What force exists between them? वो मैंने B/N लिखा है, that's a shortcut. Let's understand the question because उस दिन मुझसे किसी ने comment के अंदर भी पूछा था that why actually and how this happens. Let's see this question. There is this particular body, a spherical charge which is something like this, और इसके ऊपर में किसी ने +20 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया है. सर आपको कैसे मालूम वो प्लस है? उसके आगे कोई साइन ही नहीं लगा, इसका मतलब कॉमन सेंस प्लस ही होगा. सो मैंने यहाँ पर लिख दिया इट इज अराउंड कितना, +20 माइक्रोकूलम. माइक्रो इज 10 to the power -6 coulombs. Okay, and a second sphere of equal diameter is given a charge of -5 microcoulombs. एक और चार्ज है which is something like this. मैंने इसको दे दिया as -5 microcoulomb. Okay, the two spheres are touched and then separated 10 centimeter apart. इन दोनों spheres को मैंने टच कर दिया. Now common sense, if I am going to touch them, charges are additive in nature. If charges are additive in nature और यदि मैंने इसको टच किया तो क्या हो जाएगा, +20 and -5. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ charges after touching. क्या लगता है क्या हो जाएगा? charges after touching would become what? They will become 20. So net charge लिख दो, that is Q should be equals to 20 -5. It should be equals to 15 microcoulombs. So they are being touched. तो दोनों ऐड हो गए. अब जब दोनों को सेपरेट करोगे तो दोनों भी चार्जेस इक्वल डिवाइड हो जाएंगे. यदि दोनों भी चार्जेस इक्वल डिवाइड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? सो न्यू Q ऑन ईच should be equals to 15/2 should be equals to 7.5 microcoulombs. सो हर एक पे अब नया चार्ज कितना आ चुका है? जब मैंने टच किया दोनों में 20 -15 हुआ, मतलब 20 -5 हुआ, 15 आया. अब दोनों में सेपरेट कर दूंगा तो इस पर भी 7.5, इस पर भी 7.5, नो प्रॉब्लम. ये भी आ गया. अब इन्होंने बोला दोनों को सेपरेट कर दिया एंड दोनों की एग्जैक्टली सेंटर्स का डिस्टेंस इज 10 what? 10 meters, 10 centimeters, 10 centimeters. Okay, so it is 10 centimeters. Now think about it. आपके पास में घिसा पिटा अभी तक एक ही लॉ है which is known as Coulomb's law, and what this law says you or tells you, F should be equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Right? आपके पास में ये है लॉ. Let's take it now. F should be equals to 1/4 pi epsilon naught, क्योंकि ये एयर में रखा हुआ है. आपको कैसे मालूम? जब भी कभी उन्होंने मेंशन नहीं करा वो एयर के अंदर ही होता है. ओके,
सो यहाँ पर f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q1 एंड Q1 कितना था अपने पास में 7.5 सर, लेकिन Q1 तो 20 था, टच कराने के बाद में इक्वली डिवाइड हो गया, सो इट भी कितना आ जाएगा 7.5। क्या है ये माइक्रोकूलम, दैट मीन्स इनटू 10 टू द पावर -6, करेक्ट, इनटू वंस अगेन 7.5 इनटू 10 टू द पावर -6। आप जब थोड़े से और मैच्योर हो जाओगे इन डूइंग क्वेश्चंस, यू डोंट नीड टू राइट लाइक दिस इज वेरी बेसिक स्टफ, आप इसका स्क्वायर कर दोगे। ओके, नाउ होल अपॉन r स्क्वायर। Now what is r? 10 centimeter. Again, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनकी पहली गलती, do not write 10 centimeter. Convert this into meter. So 10 centimeter should be equals to 0.1 meter. तो यहाँ पर आप क्या करोगे 0.1 whole square. Did you understand this? Okay. Now यहाँ पर भी लिखा हुआ है 0.1 square, तो मैं इसको जानबूझ करके ऐसे लिख देता हूँ 0.1 into 0.1। डेसिमल से मैंने एक डेसिमल कैंसिल कर दिया, यहाँ पर भी एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो गया, सो 1 and 1 is 1, सो मेरा डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। सर ये आपने कैंसिल कैसे किया, ना जिन लोगों को नहीं मालूम है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में देयर वाज ओनली 1 प्लेस, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 1 प्लेस, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 1 प्लेस, तो मैंने इससे इसको कट कर दिया, इससे इसको कट कर दिया। ओके, लाइक दिस सिंपल शॉर्टकट। नाउ f शुड बी इक्वल्स टू, अब ये क्या हो चुका है 9 75 नीचे कुछ नहीं बचा आपके पास में। वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशन है, सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, बीच में एक भी प्लस का साइन नहीं है, तो क्या करोगे जो भी सेम बेस मिलेंगे उन सब की पावर्स को ऐड करते जाओ, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -6 इज -12 एंड +9 इज -3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है -3, 9 इंटू 75 डिनोमिनेटर में अगेन कुछ नहीं बचा हुआ है, तो 75 इंटू 75 कितना हो जाएगा, लेट्स सी। तो इसका भी ट्रिक होता है, 5 5 25 है ना, बट खैर लेट्स नॉट डू दिस। 25 5 2 35 and 2 37, then 35, then 3 49 and 3 52, so it will be 5 2 6 5 6 2 5, तो 75 into 75 is, so ये आ जाएगा 9 into 5 6 2 5 into होल अपॉन तो कुछ बचा ही नहीं है आपके पास में। नाउ आपके पास में केवल है 9 into 5 6 2 5, so let's multiply this by 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, that is 9 5 is 45 5 carry 4, 9 is 18 and 4 22 2 54 and 2 56 6 5, 9 for the 45 and 4 49 49625, so let's write this. So f should be equals to 49625 into 10 to the power -3. Why do we need 10 to the power -3 over here? So let's remove it and let's write it 1 2 and 3, so answer will be 49.625 newtons, because हमने क्या निकाला है, force, and that's all it's done. The question is very simple guys. जब भी कभी क्वेश्चन आएगा पहले चेक करो कि आप दोनों के दोनों चार्जेस को उन्होंने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, सेपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, then do the question. Hopefully you must have got it. Let's move directly on to question number 2. Sir आज आप इतनी जल्दी में क्यों? No. I am not in a hurry, but I need to solve one more question along with that particular topic more, and that's the reason why. Okay, let's now proceed. So can I rub this question? Fine. गाइज ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मतलब इट्स अ short chance. Let's now rub the first question once again because we have already done this question. Okay, now the next question reads something like this. A charge small q, a charge small q is placed at the center of the line joining, why have I written 2 times joining? Okay, joining two similar charges of positive q. एक small charge q को आपने 2 बड़े वाले q charges के बीच में रख दिया है. Prove q will be in equilibrium if q should be equals to -q/4.
Let's try and understand the figure first of all. So let's make a figure. So there is this particular bigger charge known as plus Q. Oh sorry, that is capital Q. Okay, now इनकी एक लाइन ज्वाइन कर रही है और बीच में मैंने एक टिंगू वाला एक चार्ज लगा दिया, छोटू वाला चार्ज लगा दिया, which is minus Q और plus Q. Okay, Q. So let's put a charge Q. Then there is another similar charge which is right over here, that is plus Q. What do you mean by the word equilibrium? Equilibrium का मतलब होता है जहां पर ये चार्ज इसके साथ में और ये चार्ज इसके साथ में आराम से स्टेबल रहे। पहले तो आपको ये देखना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चंस में आखिर कौन कौन से डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, बट ढंग से देखोगे तो ये दोनों सेम है, तो दोनों एक ही जैसे फोर्स लगा रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। बट देन प्रॉब्लम है ये इस पर भी फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब है यदि आपने इसको और इसको स्टेबल कर भी दिया तो भी ये तो इन दोनों पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, दैट माइट बी अनस्टेबल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो दैट इन योर हाउस इफ देयर आर n नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, से आप हो, आपकी एक छोटी सिस्टर या ब्रदर है और आपके मदर फादर हैं, ओके, साथ में से नॉर्मल फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट। नॉर्मल मीन्स नॉर्मल फैमिली, दैट डज नॉट मीन्स कि आप जॉइंट फैमिली में रहोगे तो और भी लोग होंगे। सो यदि आप एक नॉर्मल फैमिली में रह रहे होगे उस कंडीशन में केवल पापा को खुश रखने से या केवल पापा की बात मानने से काम नहीं चलेगा। So you have to do what? You have to make sure that your mom is also in sync with you. यदि मॉम भी आपके साथ में खुश रहेंगी, डैड भी आपके साथ में खुश रहेंगे, छोटी आपकी जो सिस्टर या ब्रदर है यदि वो भी आपके साथ में खुश रहेगा, आई एम श्योर that your entire family would be known as in equilibrium, and that's what exactly we want to do it right over here. So let's try and understand कि ये equilibrium में कब होंगे। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँ, मैंने सबसे पहले मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, से प्लस Q और प्लस Q का, सिंस आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस, सो आई पर्पसली टेकन कि दोनों बिल्कुल बीच में हैं, तो ये वाला डिस्टेंस भी मैंने मान लिया x। कॉमन सेंस है, जब ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा तो ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा। ओके, सो यदि इसके और इसके बीच में इज द डिस्टेंस x, इसके और इसके बीच में इज द डिस्टेंस x, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2x। इट इज नॉट कंपल्सरी आप x लो, आप a ले सकते हो, b ले सकते हो एंड c ले सकते हो, वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप इन दोनों को कैसे इक्विलिब्रियम में लेके आओगे। सबसे पहले तो आप चार्ज यहां पर लिखोगे F कैपिटल Q स्मॉल q, F कैपिटल Q स्मॉल q। F कैपिटल Q स्मॉल q को इस तरफ में धक्का देगा, राइट। सो आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन कम्स कैपिटल Q स्मॉल q बाय x स्क्वायर, बाय x स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज x स्क्वायर। देन कम्स F। अब एक और एक न्यू सेट ऑफ चार्ज कौन सा है, अब बोलोगे सर इसको और इसको भी तो ले लो। अच्छा, इसको और इसको लो या इसको और इसको लो तो सेम ही आएगा ना, वो तो हमने ले लिया। अब हमें डिफरेंट फोर्स लेना है, तो इसको और इसके बीच में भी फोर्स लगेगा। मान लो आपका रिलेशन सबके साथ में बहुत अच्छा है घर में, बट मॉम एंड डैड का रिलेशन मान लो एक दिन कुछ खटपट हो गई है, एंड मॉम एंड डैड का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या लगता है क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर सिंपल पार्ट इज यू नीड टू make sure that they both also are in equilibrium with each other, and that is the reason why you would like to calculate this. Okay, so let's calculate F capital Q. It should be equals to 1/4 pi epsilon naught. It is known as the permittivity in air or in vacuum. यहाँ पर कितना आएगा, कैपिटल Q by x प्लस x, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, राइट। ये हो चुका है इसके और इसके बीच में, या इसके और इसके बीच में फोर्स, और ये हो चुका है इसके और इसके बीच में फोर्स। अब दोनों को मिला करके नेट आंसर 0 आना चाहिए। क्यों सर, इसलिए बिकॉज जब आप दोनों को ऐड करोगे तो दोनों के फोर्सेस आपस में कट के इक्विलिब्रियम में आना चाहिए।
कभी कभी ऐसा होता है मॉम एंड डैड की कुछ पंगे हो जाते हैं, कुछ लड़ाई हो जाती है, बट मॉम आपको बोलते हैं बोल देना दैट आज खाना नहीं बनने वाला, दैट्स अ हॉरिबल कंडीशन। बट स्टिल कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पापा को मम्मी को मैसेज देना होगा तो वो जानबूझ करके आपके थ्रू मैसेज देंगे। अब यदि आप ही नॉन इक्विलिब्रियम में होंगे या आप यदि इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो पूरे चार्जेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए कोई भी एक को इक्विलिब्रियम में रहना तो बहुत जरूरी है, जो कि पूरे के पूरे सेट को इक्विलिब्रियम में कर पाए। ओके नाउ तो ये दोनों के दोनों चार्जेस हैं आपके पास में। नाउ आई वांट दैट दीज टू चार्जेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो कैसे करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। तो यहां पर लिखोगे आप इफ चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, if charges are in equilibrium then F capital Q plus F capital Q small q should be equals to 0, equilibrium. So let's try and put down the values. तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने दोनों में से ऐड करने के लिए मैंने दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया है। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास में, इट शुड बी सही तो लिखा था Q and Q बाय 2 का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर because it will be 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर plus capital Q and small q by x square should be equals to 0. Now please understand ये मल्टीप्लिकेशन में कॉमन करके निकाला है, जब इसको डिवाइड करोगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 will give you 0. So what do you think will be the final answer? It should be equals to capital Q by 4x squared plus capital Q small q by x square should be equals to 0. Let's take this particular part or this particular part at that side. So what will you get in the final answer? So I'm writing it somewhere over here. So यहाँ से मैंने capital Q को यही छोड़ दिया by 4x square should be equals to, इस टर्म को RHS में लेके जा रहा हूँ, so this will become minus. तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाय x स्क्वायर। कैपिटल Q एंड कैपिटल Q कैंसल्स आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल्स आउट, तो इट शुड बी इक्वल्स टू q, यहाँ पर माइनस साइन है उसको यहाँ ले आता हूँ, माइनस q बाय 4। एंड इफ यू विल सी दिस इज टेक्निकली व्हाट यू नीड टू प्रूव, सॉरी This is what you need to prove. Why? Because देखो उन्होंने बोल के रखा था Q should be equals to minus Q by 4. So guys, ये दोनों questions बहुत important है. Now comes the father of these questions, which is technically your textbook question also. In-text question है CBSE के अंदर. Now let's see. So I'm rubbing this off. Okay, now there is a question, and this question is something like this. There is an equilateral triangle. So let's make question number 3 something like this. There is this equilateral triangle. You know what is an equilateral triangle? In which all the 3 sides are equal and all the 3 angles consist of 60 degrees each. So ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है. Let's mark it as A, B and C. They are saying that A के ऊपर में मैंने +5 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, B पर +5 माइक्रोकूलम का चार्ज और C पर भी +5 माइक्रोकूलम का चार्ज। इन्होंने आपको बोला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों पे मैंने +5 एंड +5 का माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है। नाउ दे आर आस्किंग यू व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, at C. उन्होंने आपको बोला है कि आपको रिजल्टेंट फोर्स C पर निकालना है।
यदि आपने +5 का यहाँ पर दिया है और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको C पर निकालना है, तो आप केवल C को अपना मेन पॉइंट पकड़ के चलो। कैसे? आप पहले फोर्स लगाओगे A to C, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये कहाँ जाएगा? कुछ यहाँ पर, राइट? बिकॉज ये इसको धक्का मारेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो ये कहाँ जाएगा? आप बोलोगे सर लेकिन ये भी तो धक्का मारेगा इसको, लेकिन हमें तो बी पर निकालना ही नहीं है, हमें ए पर भी नहीं निकालना, हमें कहाँ निकालना है? एट द पॉइंट सी, करेक्ट? तो इसका मतलब है यदि आप ढंग से देखोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का था? 60 डिग्रीज, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 60 डिग्रीज। ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड सी दिस। सबसे पहले जब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है सी पर, तो पहले आप दिखाओगे एफ ए सी, force on A, sorry, FCA, force on C due to A, force on C due to A, कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, that is into 5 बल्कि 5 into 10 to the power minus 6 into 5 into 10 to the power minus 6, 1/4 pi epsilon naught की जगह पर वैल्यू डाल दिया 9 into 10 to the power 9 अपॉन, इन्होंने आपको बोला है वंस अगेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर्स। सर पर उन्होंने तो डिस्टेंस AB का दिया है, BC का तो दिया ही नहीं है। इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहां पर लिख देता हूं, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो नाउ ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 ये भी 10, डिस्टेंस कितना होता है? r स्क्वायर। 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.1 होल स्क्वायर, करेक्ट? नाउ ये FCA हो चुका है आपके पास में, अब निकालो F, कौन सा निकालूंगा? CA तो हो गया, अब निकालूंगा CB, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into, यहाँ पर भी वही सेम 5 into 10 to the power minus 6 into 5 into 10 to the power minus 6 by 0.1 स्क्वायर, करेक्ट? अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, किसी भी एक को सॉल्व कर लेना बिकॉज दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। सो 5 into 5 is 25, दोनों के बेसिस सेम है, बीच में कोई भी एडिशन का साइन नहीं है, सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, बेस सेम होते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -6 इज -12, 25 into 10 to the power -12, और यहां पर कितना है? 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 into 0.1, सो 0.1 into 0.1 कितना हो जाएगा? 1 into 10 to the power -1 into 1 into 10 to the power -1 is 1 into 10 to the power -2. This will be your answer for this. Okay. अब 0.01 को ही चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 into 10 to the power -2. Now -2 will go in the numerator, it will become positive, तो ये हो जाएगा 25 into 10 to the power what? That is -10. -2 ऊपर जाएगा, +10. And what is the unit? न्यूटन। तो इसका भी आंसर यही आएगा, कॉमन सेंस, इसका भी आंसर यही आएगा। क्यों? बिकॉज दोनों वैल्यूज तो सेम ही है। इट इज दैट सिंपल। 25 into 10 to the power -9. But the question is, you need to find resultant force at C. ये धक्का दे रहा है, इसको बोल रहा है तुम यहां जाओ, ये इसको धक्का दे रहा है तो बोल रहा है यहां पर जाओ, तो इसका मतलब है जो भी इसका रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट कहां जाएगा? कुछ यहां पर, इनके बीच में ही जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्लास 11 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको वो भी अभी नहीं लगाना, आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है, व्हाट इज द फॉर्मूला रिजल्टेंट के लिए? एफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा।
फिर व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्स वेक्टर्स। तो यदि ये है आपके पास में F1 और ये है आपके पास में F2, तो बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्रीज, वर्टिकली ऑपोजिट। ओके, नाउ अब आते हैं आगे। तो F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। यदि आप ढंग से देखो तो F1 और F2 तो दोनों सेम टू सेम ही है, तो क्या करोगे? इट शुड बी इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख दो, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। सर ये क्या किया आपने? जब F1 और F2 तो दोनों सेम ही है, जब F1 और F2 दोनों सेम ही है तो आप उसकी जगह पर F लिख दो। यहां पर भी F1 F2 सेम है, तो F इंटू F स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ F रिजल्टेंट शुड बी इक्वल्स टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा एंगल कितना है? cos 60। सो लेट्स राइट दिस ओवर हियर, cos 60। अब F रिजल्टेंट should be equals to under root of 2F square plus 2F square। cos 60 is 1 by 2, तो into 1 by 2, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं 2 से 2 कैंसिल। तो F रिजल्टेंट should be equals to under root of 3F square। करेक्ट? वंस यू हैव गॉट 3F square, स्क्वायर रूट से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो यहां पर कितना आ जाएगा? दैट इज √3 इंटू F, क्योंकि F स्क्वायर था, स्क्वायर रूट के अंदर पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो ये आ गया F। अब F की वैल्यू कितनी है आपके पास में? तो √3 की जगह √3, F की वैल्यू कितना था? 25 इंटू 10 टू द पावर -10, तो ये आ जाएगा √3 इंटू 25 इंटू 10 to the power -10 newtons। That's all is the answer. Now if you want to further simplify, no problem, आप √3 की जगह पर 1.73 कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना आंसर, और एल्स आप इसको ऐसे लिख के छोड़ देना 25 √3 into 10 to the power -10 newtons, and that's all is the answer of your F resultant. So if you don't want to leave the answer over here, put the value of √3 as 1.73, 1.73 को 25 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। That's all. Got this? So this is the way how you solve these particular kind of questions. पक्का? Sure? Okay. Okay. So ये भी हो चुका आपके पास में टॉपिक। Now let's move on to the next kind of set, or next, by the way, or the last topic of this particular chapter, and that is electrical field. So let's rub it. Can I rub it? Are you sure? Okay, let's rub it. Guys, if you are facing any problem right over here, please do comment. Please do comment. Okay. Now, let's try and see this. There is another topic which was being left out, that is known as relative permittivity. Relative permittivity. गाइस कल भी एक फिजिक्स का लेक्चर होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर में है। इट इज कॉमन बोथ फॉर स्टेट एज वेल एज सीबीएसई, बिकॉज गॉसेस थ्योरम वहीं से ही स्टार्ट होता है। गॉसेस थ्योरम इज द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरम इन द एंटायर इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसी पर ही सेकंड चैप्टर भी बेस्ड होता है, इसी से ही थर्ड भी स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? आपको याद होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? यू नो, कितने फोर्स से कोई भी एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है इन अ पर्टिकुलर मीडियम और इन एयर। परमिटिविटी, कितनी इजीली कोई चीज अलाउ हो रही है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिलेटिव। आपने हर बार एग्जाम्पल के अंदर बड़े प्यार से सुना कि हमने चार्जेस को एयर में रखा था, विच इज ओके। हर बार आप चार्जेस एयर में ही रखोगे, जरूरी है। यू कैन पुट द चार्जेस बैक इन वाटर, यू कैन पुट द चार्जेस बैक इन ऑयल,
we can put the charges somewhere in mica, garbage, anywhere at all, wherever we feel like. मीडियम अलग होगा, तो उसी के लिए हम लोग एक नया टर्म लेकर के आते हैं, which is known as relative permittivity. What is relative permittivity? It is nothing else but is the ratio of what? That is epsilon upon epsilon naught. It should be equals to K. जो कैपिटल K था उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, दो इट डिपेंड ऑन बुक टू बुक. इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या कई लोग इसको एप्सिलॉन नॉट आर भी लिखते हैं. Some people are also going to write it as epsilon naught r. Depends. Okay. So epsilon upon epsilon naught should be equals to K. It should be equals to this. But as of now, we'll by the way focus only on this. So epsilon upon epsilon naught का मतलब क्या हुआ? The ratio of the permittivity in medium to the ratio, or sorry, to the permittivity in vacuum will be known as relative permittivity. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सपोज कर लो मैंने यहां पर एक फोर्स लिखा था F, फोर्स इन मीडियम. What do you think the formula of force in medium is equals to? Yeah, it should be equals to 1 upon 4 pi epsilon q square by r square. यही होता है. अपन F एयर का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 upon 4 pi epsilon naught q square by r square. Now the question is, these are the two formulas. ये है फोर्स इन एयर, ये है फोर्स इन मीडियम. फोर्स इन मीडियम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हमने एप्सिलॉन लगा दिया. अब मान लो मुझे यदि यही एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं कैसे लेके आऊंगा? लेट्स सी. नाउ आई हैव अप्लाइड F एयर upon F medium. What is F air? 1 upon 4 pi epsilon naught q square by r square whole upon 1 upon 4 pi epsilon then q square by r square. So 1 4 pi q square r square. एप्सिलॉन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो कहां जाएगा? न्यूमरेटर में. सो इट विल बिकम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट्स ऑल इज द डेरिवेशन ऑफ व्हाट? दैट इज F एयर अपॉन F मीडियम should be equals to what? That is K, or that should be equals to epsilon upon epsilon naught. So if somebody asks you, define the word relative permittivity. Very important question. Define the word relative permittivity. Relative permittivity can be defined as the ratio between the force applied in between two charges in air and divided by the force between the same two charges kept in the medium. So that ratio of force in air to the force in medium will be known as relative permittivity, and this is this. But then सर ये तो सारा समझ में आ गया, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल सिंपल सा इतना मतलब है, यदि कभी किसी ने आपको बोला दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा था या रिलेटिव परमिटिविटी आ रहा था उनका 1, नो प्रॉब्लम. बट यदि दो चार्जेस आपने वाटर में रखे हैं और उन्होंने आपको बोल दिया दैट रिलेटिव परमिटिविटी स्मॉल k की जो वैल्यू है दैट इज कितना? दैट इज 80 फॉर वाटर, उन्होंने आपको दे के रखा हुआ है. तो इसका सिंपल मतलब क्या हो जाएगा? जितना भी आपका फोर्स इन एयर लग रहा था, यदि आपको फोर्स इन मीडियम निकालना है, इट विल बी सिंपल डिवाइडेड. इसका मतलब है यदि कोई चार्जेस वाटर में रखे हुए हैं तो द फोर्स विल ऑलवेज डिक्रीज बाय इतने टाइम्स. वेरी सिंपल. फिर से रिपीट कर रहा हूं. If any two charges are kept in air and after that they are taken in water and they are asking you what impact actually will have on these two charges. Very simple. You simply need to say that the force between these two charges will now be decreased by how many times? By 80 times. मान लो उन्होंने कोई ऑयल दिया और उसका आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया 40, स्मॉल k की वैल्यू इज 40, तो यू विल से द फोर्स इन ऑयल
will be 40 times lesser than the force in air. तो ये हमेशा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. Decrease. Did you understand this? Sure? Okay. So this is all from my side onto the topic of relative permittivity. We'll again see you tomorrow, guys. Enjoy and chill. See ya. Bye.